Good morning, students. Myself, Professor Uday Patel. Today, we study about space vector pulse width modulation. It is also known as space vector modulation. It is one of the best technique or best method of PWM technique. Yeah. Okay. जो भी आपका पल्स विद मॉड्यूलेशन टेक्निक है, ओके, तो उसके लिए पहले हम ये देखते हैं कि वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के अंदर कौन कौन सी कंट्रोल मेथड होती है। एक होता है आपका ओपन लूप वोल्टेज कंट्रोल मेथड। ओके, ओपन लूप वोल्टेज कंट्रोल मेथड के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा। वी ऑलरेडी स्टडी इन or we will study in control system. Okay, in that what happen कि two types of methods are there, open loop system and closed loop system। open loop system में होता क्या है, आप नॉर्मली क्या करते हो, स्विच ऑन करते हो, आपका मशीन स्टार्ट होता है और आपका जो भी लोडिंग होता है उस हिसाब से आपका स्पीड आपका मेंटेन होता है। ओके, स्पीड क्या बोलते हैं, अगर आपका स्पीड क्या होता है कि कम होता है, किसकी वजह से, आपका लोड ज़्यादा हो तो ओके, लोड कम हो जाएगा तो आपका स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। ओके, आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें पता होगी। ओके, अगर आपका क्या होता है कि आप क्लोज लूप सिस्टम यूज करते हो तो आपका क्या होता है कि जो आपको डिजायरेबल स्पीड चाहिए उस हिसाब से आपका इनपुट वोल्टेज आप चेंज करवा सकते हो। ओके, बाय यूजिंग सम कंट्रोल मैकेनिज्म। So, in that what happen? If we consider the voltage source inverter in this what, we take some V reference voltage. What is V reference voltage? कि उस वोल्टेज पे आपका जो भी मेनली सिस्टम है वो आपका मेंटेन होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे आपका वी रेफरेंस वोल्टेज आपने क्या कर दिया, सेट कर दिया। कितना सेट कर दिया, चलो 230 वोल्टेज या चलो 440 वोल्टेज, जो आपको कंसिडर करना है आप कर सकते हो। हम यहाँ पे सिंगल फेस ले रहे हैं तो सिंगल फेस एसी मोटर के लिए 230 वोल्टेज हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब 230 वोल्टेज आपने मेंटेन किया किसके यूज से, आपका पीडब्ल्यूएम के यूज से। आप क्या करोगे, 230 वोल्टेज इस रेफरेंस वोल्टेज को सेट करवाओगे कि उस तरह आपका जो भी पीडब्ल्यूएम है, ओके, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन है, वो आपका वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में जो आपकी स्विचेस होती हैं, ओके, उसको वो कंट्रोल करवा सके। ओके, और जो आपका यहाँ पे पल्सेस जनरेट होगा वो कहाँ पे जाएगा, वोल्टेज इन्वर्टर के अंदर गया, 6 स्विचेस को उसने कंट्रोल करवाया और उस हिसाब से जो भी आपका एसी वोल्टेज होगा, ओके, इन्वर्टर है तो आपका इनडायरेक्टली क्या होगा, एसी ही होगा ना। तो एसी यहाँ पे जो भी आपका वोल्टेज जनरेट होगा वो एसी मोटर को हो जाएगा और इस हिसाब से आपका क्या होगा, एसी मोटर वर्क करेगा। बट मेन प्रॉब्लम इज दैट कि इफ वी connect the balance load, okay, there is no problem in that. But if we connect variable load, okay, in that what, sometimes the load will be increase or decrease depending upon that your AC motor will be AC motor's speed, rotor speed will be changed. Okay, so it is a very big major problem for open loop voltage control method. Now, if we consider the closed loop voltage control method, okay, yeah, or closed loop current control method, in that what happen? Ki same system will be implemented in that, but we take some feedback signal. Okay, in that we take the feedback current signal. Okay, in that what happen? Ki I reference and I feedback current is uh, what we can say subtracted. Okay, I reference minus I feedback current. Okay, in resultant we get some error. Okay, error given to the PWM technique. Okay, in that PWM technique control mechanism is generate the pulses. By using that we can uh, eliminate that error, okay, which will generated in this signal, okay, in this path. So we get some pulses, okay, we given to the voltage source inverter, and by we get zero error in this. Okay, we get zero feedback current, oh sorry,
is same as current as I reference current. Okay, so AC motor will be in stable condition. Okay, if load is increased or not, okay, it will always in stable condition. Okay, by using this feedback current loop. So this is a major advantages of that. But if we talking about the response time of both voltage and current control, open loop and closed loop, okay, then the response time of open system is very fast comparatively closed loop system. Why? Because we given to the feedback path. Okay, so some process will be happen, and by that the response time of closed loop current control is high compared to open loop voltage control method. ओके नाउ अभी हम क्या बात करेंगे कि जो भी हमारा वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है उसके बारे में बात करेंगे. ओके, तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि जो भी आपका वी ए वी बी एम वी सी है, ओके, उसको रेफरेंस वोल्टेज वी ए डैश वी बी डैश एंड वी सी डैश से आपका क्या होना चाहिए, वो आपका आना चाहिए. ये रेफरेंस वोल्टेजेस है. ओके, रेफरेंस वोल्टेजेस यहाँ पे ऐसे दिए जाएंगे कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक की वजह से आपका S1 टू S6 जो भी आपका स्विच होगा वो उसी तरह आपका क्या होगा, उसके पल्सेस जनरेट होंगे और रेफरेंस वोल्टेज जितना वोल्टेज आपको यहाँ पे मिल सके. ओके, ये हमारा मेन एम है. सो यहाँ पे हम एक फेज लेग के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो भी मेनली रेफरेंस वोल्टेज देने के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी आपका एक बीसी वोल्टेज है, एक ट्रायंगुलर वोल्टेज है. ओके, वी ऑलरेडी स्टडी अबाउट मैनी टाइप्स ऑफ पीडब्ल्यूएम टेक्निक. ओके, यहाँ पे हमारा ट्रायंगुलर वेवफॉर्म के साथ आपका जो भी रेफरेंस वेवफॉर्म है वो आपका कंपेरिजन होगा, आपका पल्सेस जनरेट होगा और वही पल्सेस आपको किसको दिया जाएगा, आपका फेज लेग के अंदर जो भी आपकी स्विचेस होंगी उसको दिया जाएगा. तो आपको जो भी मेनली मोटर के अक्रॉस में जितना वोल्टेज आपको मिलना चाहिए वो आपको मिल जाएगा. ओके, पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर. और यहाँ पे सेपरेटली जो भी ए बी एंड सी या आर बाई बी फेज के लिए सेपरेट आउट जो भी आपके रेफरेंस वोल्टेजेस हैं, ओके, उसके साथ पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन लगाया गया है जो यहाँ पे दिया गया है. ओके, नाउ ये हो गई सिंपल मॉड्यूलेशन की बात. ओके, बात आती है कि स्पेस वेक्टर मॉड्यूलेशन. Space vector representation of three-phase quantities are xat, xbt and xct with space distribution of 120 degree apart is given by. Equation for the space vector modulation is that x bar is equal to 2 by 3 xat plus a xbt plus a square xct. Okay, where a is equal to e raised to j 2 pi by 3 is equal to cos of 2 pi by 3 plus j sine of 2 pi by 3. If we consider the a square, then we got a square is equal to ej 4 pi by 3 is equal to cos of 4 pi by 3 plus j sine of 4 pi by 3, where x, okay, x means what, x at के अंदर या x bt या x ct जो भी यहाँ पे लिखा गया है, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, वो वोल्टेज हो सकती है, करंट हो सकती है, फ्लक्स हो सकता है. ओके, डजंट नेसेसरी हैज टू बी साइनसोइडल. ओके, यानी कि साइनसोइडल होना वो नेसेसरी नहीं है. अब लेट कंसीडर थ्री फेज साइनसोइडल वोल्टेजेस. VAT is equal to Vm of sine of omega t, VBT is equal to Vm sine omega t minus 120 degree, VCT is equal to Vm sine of omega t plus 120 degree. थ्री फेज वोल्टेज जो हम कंसिडर करते हैं वही सेम दिखा गया है यहाँ पे. सो हमारा मेन वोल्ट जो भी इक्वेशन था, ओके, स्पेस वेक्टर था, वो किसके अंदर कन्वर्शन हो गया, उसका वोल्टेज के अंदर, जो यहाँ पे आप देख सकते हो. ओके, उसके वेवफॉर्म यहाँ पे आप देख सकते हो. ओके,
आर वाई एंड बी का वेवफॉर्म यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। ओके, रेड ब्लू एंड ग्रीन कलर से। सो यहाँ पे आपको कोई एक पॉइंट पे, ओके, विच इज टी इज इक्वल टू टी वन टाइम पे आपका ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या है, 3 पाई इंटू पाई इज इक्वल टू 108 डिग्री है। आप इक्वेशन के अंदर वैल्यूज रख दोगे तो वी ए वी बी की वी सी की वैल्यू कुछ आपको इस तरह मिलेगी, और उसके ऊपर से आप क्या निकाल सकते हो कि यहाँ पे आप ये ड्रॉ कर सकते हो वी ए वी बी एंड वी सी के लिए। ओके, तो आपको रिजल्टन यहाँ पे कुछ ये में आपको मिलेगा। ओके, और वो आप क्या कहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हो। ओके, 360 डिग्री के अंदर आप ड्रॉ कर सकते हो। थ्री फेज क्वांटिटी वेरी साइनोसॉइडल विद टाइम। ओके, आप सभी लोगों को पता है ये। स्पेस वेक्टर रोटेट्स एट 2 पाई एफ। ओके, एंगुलर वेलोसिटी पे आपका क्या होता है, स्पेस वेक्टर रोटेट होता है। मैग्नीट्यूड आपका क्या होगा, वीएम होगा। हाउ कुड बी सिंथेसाइज साइनोसॉइडल वोल्टेज यूजिंग वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। तो यहाँ पे आपका सेम वही दिया गया है कि वी वांट वी ए वी बी एंड वी सी टू फॉलो आवर रेफरेंस वोल्टेजेस from the definition of space vector we got this equation. Okay, we are already got in previous slide. ओके, वी एन बी बी एन बी सी एन का आपको क्या मिलेगा, देखो वी ए एन कहाँ पे है, ये वाला है। ओके, के वी एल ही सिंपली लगाया गया है कि वी ए एन इज इक्वल टू व्हाट, वी ए कैपिटल एन प्लस वी एन एन। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, यहाँ पे सिर्फ आपको क्या लगाना है, सिर्फ आपको केवीएल लगाना है। ओके, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, सिमिलरली आपका बीबीएन एंड बीसीएन के लिए भी आपका है। यहाँ पे जो भी आपके मेनली इक्वेशन हमने फाइंड आउट किए थे जस्ट अभी, बी एन बी बी एन बी सी एन का जो भी हमें इक्वेशन मिला था। ओके, वो हमने इक्वेशन यहाँ पे लिख दिया है, और यहाँ पे आपको ये टर्म आपको दिख रही है। ओके, बी एन एन को हमने यहाँ पे कॉमन लिया है, तो ये हमारा इक्वेशन बनता है। ओके, 1 + a + a² का वैल्यू आपको क्या मिलता है, 0 मिलता है। ओके, सो हमारा मेनली इक्वेशन वो कन्वर्जन हो जाएगा। उसके पहले हम क्या करेंगे कि वी एन बी ए एन, ओके, जो भी हमारा मेनली इक्वेशन बनता है, ओके, उसको हमने यहाँ पे लिखा है। ओके, जहाँ पे आपका एस ए एस बी एन एस सी जो भी आपका है, ओके, वो हमने क्या लिया है, एस सॉरी, वो हमारा क्या होता है 1 या 0 होता है। तो आप लिखो ना लिखो, इट डजेंट मैटर, सिर्फ आपका जो भी फाइनल इक्वेशन होगा वो इसके अंदर कन्वर्जन आपका हो जाएगा। अब हमने क्या किया है, स्पेस वेक्टर को यहाँ पे इस तरह रिप्रेजेंट किया है। ओके, तो उसके ऊपर से हमारा क्या होगा कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पे आपका क्या है कि v1 इज इक्वल टू बाई 3 VDC आपको मिलेगा। ओके, जो भी यहाँ पे क्या है कि जो भी क्या बोलते हैं, ये जो भी आपको सेक्शन सेक्टर 2 के अंदर 1/√3 आपको मिलता है। ओके, the reference voltage is sampled at regular time interval t. Within a sampling period, V reference is synthesized using adjacent vectors in zero vectors. Okay, यहाँ पे हमने v1 v2 को कंसीडर किया है। ओके, और जो भी उसका वेक्टर है उसको हमने 100 110 से रिप्रेजेंट किया है। ओके, सेक्टर 1 के अंदर हमने जो भी वैल्यू मिली है, ओके, v1 और v2 की, उसको हमने दिया, और उसका रिजल्टन हमको यहाँ पे इतना मिलता है। ओके, if t is a sampling period, v1 is applied for t1 time, v2 is applied for t2 time. Okay, zero voltage is applied for rest of the sampling time. So t0 is equal to what, t0 is equal to t minus t1 minus t2. ओके, और उसके ऊपर से हमें कुछ नहीं कुछ वेवफॉर्म मिलता है। ओके, देखो ये हमारा क्या है, सैम्पलिंग आपका वी रेफरेंस के लिए टाइमिंग है। ओके, यहाँ पे आप बी ए वी बी वी सी को वेवफॉर्म का देख सकते हो। ओके,
V1 आपका T1 के लिए आपका अप्लाई हुआ है, V2 आपका T2 के लिए अप्लाई हुआ है, रेस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या मिलेगा, जीरो वोल्टेज मिलेगा। ओके, सिमिलरली आपको रेस्ट पार्ट के लिए भी आपको वैसे ही सेम आपको वेव मिलेगा। ओके, हाउ वी कैलकुलेट T1 T2 एंड T3। ओके, यहाँ पे आपका T1 T2 एंड T3 के लिए यहाँ पे ये इक्वेशन दिया गया है। ओके, दे आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन वोल्ट सेकंड इन टी वी रेफरेंस वोल्टेज। ओके, 1 by t 0 to t v reference dt is equal to 1 upon t 0 to t0 v0 dt 0 to t 1 v1 dt plus 0 to t2 v2 dt plus 0 to t7 v7 dt। यहाँ पे आप देखने के लिए चाहते हो तो आपका v0 में v7 कैसा है कि वहाँ पे आपको वोल्टेज नहीं मिलता है। ठीक है, तो उसकी वजह से आपका क्या होता है कि यहाँ पे और यहाँ पे ओके दोनों के वोल्टेज आपको क्या मिलेंगे, जीरो मिलेंगे। ओके, तो फाइनली यहाँ पे कुछ इस तरह आपको इक्वेशन मिलता है। ओके, t is equal to t1 plus t2 plus t0 और t7। ओके, तो यहाँ पे आपको वी रेफरेंस इज इक्वल टू वी रेफरेंस कॉस ऑफ अल्फा माइनस जे साइन ऑफ अल्फा मिलता है। ओके, तो उसके बाद आपको फाइनली जो भी आपके वोल्टेजेस मिलते हैं T1 T2 के, ओके वो यहाँ पे इस तरह आपको मिल जाएंगे। ये कंपैरिजन है। ओके, आपको फाइनली लाइन टू लाइन वोल्टेजेस जो भी आपको मिलेगी कि वो क्या मिलेगा, BDC माइनस रूट थ्री बाई टू VDC डिवाइड बाई रूट थ्री बाई टू VDC इंटू 100। ओके, इज इक्वल टू आपका 15%। सॉरी, थैंक यू सो मच।